एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रंजना फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस। तो आज की वीडियो में बेटा डिस्कशन है आपके इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर और डेट्स हैं आपकी 22, 23, 24 एंड 25। और सबसे पहली न्यूज बेटा इसमें आपकी डिस्कशन जो है स्टार्ट करते हैं। नाउ दिस इज रिगार्डिंग योर हिस्टोरिकल जो है इंपॉर्टेंट एरियाज। नाउ विद चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ डिक्लेयरिंग ड्यूरिंग recent session in the state assembly, area कौन सा है? That is पीपरवा। Relics repatriated to India recently, nearly 127 years after they were taken out of the country, would be brought back to UP. ये ambitious plan है are afoot here to restore Buddhist artifacts to their original extraction site in पिपरवा village. बहुत बड़ी बात है, बुद्धिज्म की बात चल रही है यूपी के कंटेक्स्ट में। तो जहां से उनका ओरिजिनेशन हुआ वहां पे उनको वापस जो है वो लाया जाएगा 127 इयर्स जो है आफ्टरवर्ड्स। नाउ लोकेटेड इन सिद्धार्थ नगरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी along India's international border with Nepal, Peparwa village lies just south of Lumbini, believed to be the birthplace of Lord Gautam Buddha. शायद सुन के आपको समझ में आ गया होगा हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस का नाम आपने याद रखना है। एंड वन ऑफ द लेसर विजिटेड स्पॉट इन द स्टेट्स बुद्धिस्ट सर्किट यूपी नाउ प्लान्स टू डेवलप एट दिस नियरली 20 हेक्टेयर साइट अ थीम पार्क डिपिक्टिंग द अर्ली लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। तो उसको टूरिज्म पर्पस के लिए डेवलप करने जा रहे हैं। And a stupa that will likely showcase the relics and thematic meditation area. Now the theme park will be located in front of the existing Piparava stupa, a site protected by ASI. तो stupas को आपने और भी अच्छे से ध्यान से तैयार करना है। And linked to the Sakya kingdom in the ancient city of Kapilavastu, the childhood home of Lord Buddha. Since the proposal is at the preliminary stage, a state official said they don't have a timeline or budget estimate. तो अभी ये आइडिया जो है वो सिर्फ जनरेट हुआ है। And official said the UP also has plans to set up an immigration office at the Kakarwa border of Siddharth Nagar district for ease of entry of Buddhist pilgrims visited to Peparwa from Lumbini in Nepal. तो नेपाल से भी लोग जो है यहाँ पे आ पाएंगे। And the Peparwa relics, which include ash and bone fragments reportedly belonging to Lord Buddha and gold ornaments and gemstones, were excavated by William Claxton Pepe, an English estate manager and engineer। कब ढूंढे गए थे? 1898 के अंदर जो है ये ढूंढे गए थे। And while most of the relics were claimed by British Crown under the Indian Treasure Trove Act 1878, उन्होंने अपने लिए जो है क्लेम किया। A fifth of the total find was retained by Pepe, लेकिन पांचवा जो है वो गवर्नमेंट को नहीं दिया गया then British government. So these gems were said to be auctioned, और फिर जो है इनकी बाद में ऑक्शनिंग के लिए इनको रखा गया by Sodley in Hong Kong in May this year. So relics repatriated, ये आपके जो है वो important relics हैं, तो बहुत कीमती है। So when the Indian government intervened and successfully sought their repatriation. On August 18, a team comprising UP आपके tourism minister जो है and senior officials, so उन्होंने बात की ना, sources said that state is seeking a collaboration। तो ये हांगकांग में उस टाइम पे जो है वो बेचे गए थे। तो अभी इस वजह से हम collaboration जो है वो भी डिमांड कर रहे हैं with Union Ministry of Tourism to like on this project। And before bringing the relics back to the state, the original site of excavation, UP plans to transform the spot of setting up of world's Buddhist tourism site। तो इसको जो है बुद्धिज्म टूरिस्ट साइट की तरह डेवलप करने की प्लानिंग बनी है। We are working on a plan to enhance tourist experiences and all। तो ये न्यूज हमारे लिए इतनी ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ऑफ द लेट जो है by just 26,805 tourists visited Peparwa in 2022। ऑफिशियल रिकॉर्ड है आपका, ये 2 गुना बढ़ गया 70,000 2023 के अंदर, और माइनर राइज इवन 9,000 का फिर से इसमें हुआ। तो ये हमारे लिए डेफिनेटली टूरिज्म के लिए एक अच्छी प्लान है। तो अभी आपने क्या रखना है, कौन सा एरिया है पेपरवा, ओरिजिनल एक्सकेवेशन किसने की थी? विलियम क्लैक्सन पेपे ने 1898 के अंदर, और फिर इसको बाद उन्होंने ऑक्शन कर दिया था हांगकांग में। इसको हम वापस जो है वो ला रहे हैं। और इसके अलावा आपका सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट यूपी के अंदर ये इंटर्न सर्कल एरिया है जिसको कि ये टूरिज्म के लिए ओपन करेंगे, ताकि इनफैक्ट लुम्बिनी से, नेपाल से भी लोग जो है यहाँ पे आ सके। ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से लर्न करो। नेक्स्ट न्यूज जो है वो हमारी है कंजर्वेशन
कंजर्वेशन के साथ रिलेटेड। नाउ इन अ वोल्टे फेस लेस देन अ मंथ आफ्टर अफर्म्ड बिफोर द बॉम्बे हाई कोर्ट, the identification of tiger corridor must take cognizance of multiple scientific studies and parameters। तो जो आप यहाँ पे कॉरिडोर्स की बात कर रहे हो स्पेसिफिकली फॉर टाइगर्स, तो उसमें आपने बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना है। ये बोला गया है खास करके नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इशूड अ क्लैरिफिकेशन यस्टरडे लिमिटिंग द नंबर ऑफ सच कॉरिडोर्स प्राइमरली टू ओनली 32 लीस्ट कॉस्ट पाथवे, जो कि 2014 में हमने आइडेंटिफाई किए थे। टाइगर कॉरिडोर्स क्या है? टाइगर कॉरिडोर्स आर वाइटल वाइल्ड लाइफ पाथवेज दैट कनेक्ट टाइगर हैबिटेट्स इनेबलिंग एनिमल मूवमेंट, जीन फ्लो, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। Now, under the Wildlife Protection Act of 1972, developmental projects requiring land in and around tiger reserve। तो टाइगर रिजर्व के आसपास अगर आपका कोई एरिया है तो उसके लिए आप पहले अलग से मार्क करके रखो ताकि टाइगर कॉरिडोर जो है वो बनाए जा सके, राइट, इन एंड अराउंड टाइगर रिजर्व। और कॉरिडोर रिक्वायर्स स्टैट्यूटरी क्लियरेंस, उससे क्लियरेंस भी लेनी पड़ती है। कहां से? नेशनल बोर्ड फॉर जो है आपका वाइल्ड लाइफ से। एंड देन among the potential beneficiaries of the new limited definition of tiger corridors are Western Coalfield Limited, Durgapur and Leol Metal Energy in Maharashtra। तो इन प्रोजेक्ट्स को फायदा होगा बिकॉज ये स्पेस अगर दे देंगे कॉरिडोर्स के लिए तो फिर इनका प्रोजेक्ट कंटिन्यू करता रहेगा बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के। Now asked about the turnabout, NTCA inspector who issued the clarification in the letter to all state governments yesterday declined to comment। उन्होंने कमेंट नहीं किया while discussing Western Coalfield mining project with the Tiger corridor connecting the कौन सा दैट इज योर, यहाँ पे आप इसको ध्यान दो कौन कौन से टाइगर रिजर्व की बात आ रही है। दिस इज तादोबा कन्हगो तिपेश्वर फॉरेस्ट, कहाँ पे है? महाराष्ट्र, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और इनका वहां पे प्रोजेक्ट है किसका? वेस्टर्न कोलफील्ड का। तो इस वजह से मार्च 12 को मीटिंग विद दिस अ सीनियर माइनिंग ऑफिशियल ऑब्जर्व दैट प्रोजेक्ट्स दैट डिड नॉट फॉल विद इन द लीस्ट कॉस्ट पाथवे डेजिग्नेटेड टू टाइगर वर बीइंग सेंट फ्रॉम महाराष्ट्र इवन दो सच प्रोजेक्ट शुड नॉट रिक्वायर योर अप्रूवल। तो थोड़ी सी इनकी आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, बट ये हमारे लिए फोकस नहीं है। हमारे लिए फोकस है कि आपके टाइगर कॉरिडोर्स होते हैं, कितने बनाने की बात चल रही है और कौन कौन सी टाइगर की रिजर्व जो है उनकी डिस्कशन यहाँ पे आपकी है, ये आपने फोकस करना है। नाउ कंसीडरिंग द सेम प्रोजेक्ट द 84th मीटिंग, इसमें जो है डायरेक्टर ने नोट किया कि महाराष्ट्र अलोन इज फेसिंग दिस इशू एंड एनवायरमेंटल सेक्रेटरी सेड दैट NTSC should clarify that the only least cost pathway identified by them should be treated as tiger corridors। तो इसको टाइगर कॉरिडोर्स को जो ऑलरेडी आपके वेल फॉर्म रूल है सिर्फ उसी के बेसिस पे ही बनाया जाए और स्पेसिफिकली इसके लिए जबरदस्ती ना की जाए। आगे देखते हैं इसके अंदर जो है आपको ये क्या बता रहा है? अमंग द प्रोजेक्ट्स अप फॉर डिस्कशन SBWL मीटिंग वर टू प्रपोजल रिक्वायरिंग 9.5 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट लैंड। माइनिंग होती है वहां पे हेमेटाइट की फ्रॉम क्वार्टजाइट, सिस्टमिक रिकवरी ऑफ आयरन ओर एंड लेइंग आउट द रोड साइड कन्वेयर इन योर सूरजगढ़ माइंस रन बाय लियोर्स। तो ये एरिया है जहां पे माइनिंग आपकी होती है और उसको लेके थोड़ा सा इश्यू चल रहा है रिगार्डिंग द फॉर्मिंग ऑफ योर टाइगर जो है कॉरिडोर्स, राइट। तो इसके अंदर बेंचमार्क में डेफिनेशन में देखते हैं कि क्या क्या बात करते हैं, ये किस एरिया की रीजन की बात करते हैं। फर्स्ट इज प्रोटेक्टेड एरिया ऑक्यूपाइड बाय टाइगर होता है। सेकंड लीस्ट कॉस्ट पाथवे आइडेंटिफाइड इन 2014 है। देन कॉरिडोर मार्क्ड इन टाइगर कंजर्वेशन प्लान टू ईच रिजर्व है। कॉरिडोर आइडेंटिफाइड बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है, राइट। कॉरिडोर आइडेंटिफाइड बाय WII टेलीमेट्री बेस्ड है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइगर्स बेस्ड ऑन योर क्वाड्रिलियल ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन। तो ये सारे बेंचमार्क जो है वो डिफाइन करते हैं आपके टाइगर कॉरिडोर्स को। इतनी सारी एजेंसीज ने वहां पे अपने हिसाब से जो है वो इनको फीचर्स दिए हुए हैं कि कॉरिडोर्स के लिए कैसे आपने जो है वो टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन प्लान बनानी है, कैसे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन वालों ने कहा कि आपने कॉरिडोर्स बनाने 2016 की प्लान के बेसिस पे। नाउ एट टुडेज हियरिंग NTCA मॉडिफाइड दैट स्टैंड बाय प्लेसिंग ऑन रिकॉर्ड द क्लैरिफिकेशन इट इशूड। नाउ दिस रिड्यूस द बेंचमार्क फॉर टाइगर कॉरिडोर्स ओनली टू, अब सिर्फ ये सारी बातें छोड़ के कौन सी बात आ रही है? दैट इज लीस्ट कॉस्ट पाथवे, जो कि 2014 में इन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, उन्होंने ही सिर्फ बनाने हैं। एंड एक्सक्लूजन ऑफ मल्टीपल WII स्टडीज एंड रोबस्ट AITE डाटा हैज सरप्राइज्ड मैनी ऑफ 2014 NCTA रिपोर्ट इटसेल्फ। Caution that corridors shown in this report are minimal requirement and that alternative connectivity do exist in many areas which need to be conserved। तो इनसे पहले वाली बातें जो है वो सिर्फ मिनिमल के साथ है, लेकिन अभी 2014 में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। Now, in fact, the last month's affidavit said that NTCA was in the process of the refinement of tiger corridors।
based on AITE data. Now it is unlikely that refined corridor report will be released before Maharashtra issue are settled unless High Court specifically ask for it. लेकिन अभी भी इसके लिए क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं आई है. सो इस वजह से नागपुर बेस्ड LRC फाउंडेशन अप्लाइड कंटेम्पररी सर्किट्स के मॉडलिंग which reflects multiple probable paths of animal movement, not just the shortest route. तो अभी वो कह रहे हैं कि सिर्फ शॉर्टेस्ट रूट क्यों, मल्टीपल आप ऐसे रूट्स जो है वो बना सकते हैं. टू कम अप विद 192 कॉरिडोर्स होने चाहिए, फॉर्म ए डेंस नेटवर्क अक्रॉस 10 सेंट्रल इंडियन स्टेट्स, इनेबलिंग टाइगर मूवमेंट अक्रॉस 30 टाइगर रिजर्व्स एंड अराउंड 150 प्रोटेक्टेड एरियाज. तो ये जो है आपकी जुलाई की नागपुर बेस्ड जो फाउंडेशन है उसकी रिपोर्ट है, जो कि कहते हैं कि इस काम को बहुत और अच्छे से किया जाना चाहिए. तो ये आपकी कंट्रोवर्सी है रिगार्डिंग योर कॉरिडोर्स फॉर द टाइगर्स. तो इसमें आपके क्या क्या बातें याद करने वाली है. इट्स वेरी इजी. पहले तो आपका लीस्ट कॉस्ट पाथवे की बात आ रही है 2014 में, जो ये इसके बेसिस पे आपने बनाने हैं 32. और उसके बाद रीजन कौन सा आपका इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र. वहां पे आपका वेस्टर्न कोलफील्ड माइनिंग प्रोजेक्ट है जिसकी प्रॉब्लम है विद तादोबा खंगरोटेश्वर फॉरेस्ट. महाराष्ट्र एरिया जो है ये महाराष्ट्र का, ये आपने ध्यान रखना है. उसके बाद फिर ये कौन सी माइनिंग करते हैं, उसके बाद फिर मल्टीपल आपके 2023 के बेसिस पे क्या क्या बेंचमार्क है, और रिसेंटली फिर अभी क्या बोला है कि आप जो है लीस्ट बेंचमार्क कॉरिडोर जो है उसी को फोकस करो. लेकिन आपकी कुछ एजेंसीज मेंस में आप बोल सकते हो कि किस तरह से आपकी कॉरिडोर बनाने चाहिए, ये आप वहां पे केस स्टडी रिपोर्ट कर सकते हो. नेक्स्ट आपकी न्यूज जो है वो है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी. और अब आरबीआई की कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी पे न्यूज है उसको हम कभी भी नहीं छोड़ सकते, बिकॉज अभी आपका प्रीलिम्स का टाइम पीरियड है और उसके बाद मेंस में भी आपको डाटा चाहिए. तो जो भी कुछ होगा उसकी कवरेज जो है वो डेफिनेटली आपको अच्छे से करनी चाहिए. तो अभी इसमें देखते हैं आरबीआई पेपर ऑन मॉनेटरी पॉलिसी जो है उन्होंने क्या कहा. आरबीआई थर्सडे रिलीज इट्स जो है आपकी मोस्ट अवेटेड डिस्कशन पेपर ऑन द करंट मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क and warning that raising the inflation target at the current juncture could be seen as a dilution of the framework and lead to the loss of policy gain made over the last decade or so. तो ये बोल रहे हैं कि अभी अगर हम कोई भी मेजर पॉलिसी चेंजेस जो है वो ला रहे हैं अगर, तो उससे हमें प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ सकती हैं. और यहाँ पे जो है वो किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात आ रही है, दैट इज मेनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर, दैट इज रेजिंग योर इन्फ्लेशन पार्ट, राइट, रेजिंग द इन्फ्लेशन टारगेट. तो इसको दोबारा चेंज नहीं करना चाहिए, ये सुजेस्ट कर रहे हैं. In its discussion paper, Indian Central Bank has sought feedback by September 18 on 4 key questions. क्या यहाँ से आपके मेंस के क्वेश्चंस बनते हैं. If monetary policy should target headline or core inflation, if the current 4% target remains optimal to balance growth and stability, whether the tolerance band of 2 to 6% needs to be revised or even dropped, and if the target rate of 4% जो है should be removed and only a range is to be maintained. तो किस तरह से इन्होंने अब सजेशंस मांगी है कि हम हेडलाइन या कोर इन्फ्लेशन को लेके किस तरह से अपने टारगेट सेट करें. However, raising the target at this stage, when the global economy is confronted with geopolitical uncertainty and geoeconomic fragmentation, can be interpreted by global investors as a dilution of inflation targeting, so thereby undermining policy credibility. अगर अब हम अपनी इन्फ्लेशन रेट की टारगेटिंग को चेंज करते हैं तो ग्लोबली ये भी एक जो है वहां पे आइडिया आ सकता है कि हम डाइल्यूट कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी अच्छे से नहीं चल रही है. इसके साथ ही देन फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, दैट योर इट कुड इरोड द गेन्स इन द पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी. हमारी क्रेडिबिलिटी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो गिर सकती है. अचीविंग थ्रू फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, जो अभी तक हमने ली है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से प्ले करके और एक्सटर्नल स्टेबिलिटी बना करके. Now, the discussion paper said that reducing the target rate below 4% तो may not be appropriate. इसलिए 4% से कम अगर हम करते हैं तो appropriate नहीं होगा. Last week, while upgrading India's rating to BBB from BBB minus, S&P Global Rating has praised the RBI, saying its record of inflation management had been जो है वो burnished by headline retail inflation staying broadly with 2 to 6% target range. So low and stable inflation is crucial to foreign investors. तो अगर आपके यहाँ पे इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं है और स्टेबल भी है तो वो आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्या करती है, बेटर करती है और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इंक्रीज करती है. एंड एज शार्प
low and stable inflation is crucial to foreign investors as sharp increase in prices can erode their investment. क्योंकि अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है आपकी कंट्री में तो फॉरेनर्स को लगेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, कि वो उनका पैसा ज्यादा चला जाएगा, इस वजह से वीकन ग्रोथ होगा एंड डोमेस्टिक करेंसी एंड क्रिएट जो है सोशल अनरेस्ट, ऑल फैक्टर्स दैट कैन लीड टू रेटिंग डाउनग्रेड। तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल एजेंसीज आपकी रेटिंग करती हैं तो वो आपकी रेटिंग को डाउनग्रेड कर देंगी, कम कर देंगी। अब एक्चुअली ये बड़ा डिफिकल्ट होता है हाउ टू मेंटेन दिस बैलेंस। अगर इन्फ्लेशन आपकी बहुत ही कम हो जाती है तब भी लोग बाहर नहीं आते इन्वेस्टमेंट के लिए, उसका मतलब ये होता है कि चीजें बहुत ही सस्ती हैं तो इन्वेस्ट करने में क्या फायदा। इन्फ्लेशन अगर बहुत ज्यादा हो जाती है तो उससे क्या होगा, आपकी सप्लाई साइड वहीं पे पड़ी रह जाएगी, लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा क्योंकि चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस रखना पड़ता है कि इतना हो कि एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज भी हो, इन्वेस्टमेंट्स भी हो, बाहर से भी पैसा आए, और जो बाहर से पैसा आए वो लोग भी स्टेबिलिटी देखते हैं कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं है, दैट मीन्स की नॉर्मल लेवल में है, लोग चीजों को हमारे खरीदेंगे अगर हम यहाँ पे आके पैसा लगाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टेबिलिटी। तो उसी की ही बात चल रही है कि आप जिस तरह से भी हमने परफॉर्म किया वही रखें या फिर हम अपने इन्फ्लेशन को जो है टारगेट को थोड़ा सा कम करें। नाउ आरबीआई फॉर्मली अडॉप्टेड फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क इन लेट 2016 से ही हमारा जो टारगेटिंग है वो हमने फ्लेक्सिबल करके रखी हुई है, इसको बहुत पकड़ के नहीं रखते। एज पर फ्रेमवर्क एग्रीड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट द टारगेट इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years एंड आफ्टर विच इट मस्ट बी रिव्यूड। नाउ सिंस द फ्रेमवर्क इंसेप्शन, जब से हमने 2016 में ये फ्रेमवर्क बनाया है, मीडियम टर्म टारगेट फॉर आरबीआई हैज बीन, तो जनरली हमारा मीडियम टर्म टारगेट आरबीआई का क्या रहता है, 4%। इन टर्म्स ऑफ सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन का 4% रहे विद इन ए बैंड ऑफ 2 to 6%, मतलब थोड़ा 4 से 2 नीचे या 4 से 2 ऊपर, इतने ही बैंड में आपकी इन्फ्लेशन जानी चाहिए इन रिलेशन टू योर सीपीआई, राइट। नाउ द टारगेट विच इज वैलिड अंटिल March 2026, ये वैलिड है तब तक, मस्ट बी नोटिफाइड अगेन फॉर 5 year पीरियड। अब 2026 के बाद हमने नया फिर से इसको रिफ्रेश करना है कि सेम रखें या इसमें चेंजेस करें। नाउ अर्लियर दिस मंथ इन August 6 गवर्नर संजय मल्होत्रा सेड that RBI was preparing the discussion paper, इसी वजह से लोगों की सजेशन ली जा रही है with the final view, so we will give our view to the government as how we would move. Now headline versus core, the debate on whether monetary policy should target headline or core inflation, which is inflation without taking into account food and फ्यूल आइटम्स, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन में हम फूड और आपके जो है वो फ्यूल को नहीं लेते, whose prices can be rather volatile came to the fore over the last year। कि अभी हम क्या कोर की भी बात करें, उसको लेके भी फोकस करें, इसको लेके इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में जो है वो बात हुई थी। नाउ इट इज वर्थ एक्सप्लोरिंग वेदर इंडियाज इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क शुड टारगेट द इन्फ्लेशन रेट एक्सक्लूडिंग फूड ऑन अकाउंट ऑफ हाई वेट ऑफ फूड एंड सीपीआई। मतलब सीपीआई में फूड के ऊपर काफी ज्यादा वेटेज होती है, तो क्या अभी हम फूड को बाहर निकाल के आपका इन्फ्लेशन रेट जो है टारगेट का वो फिक्स करें। Now, India's inflation targeting framework should consider targeting inflation excluding food. Higher food prices are more often not demand induced but supply induced, क्योंकि फूड में इन्फ्लेशन सप्लाई के साथ ज्यादा, क्योंकि डिमांड तो जनरली उतनी की उतनी रहेगी, डिमांड में तो बहुत चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन चीजों के रेट बहुत बढ़ जाते हैं जब सप्लाई में प्रॉब्लम आती है, इस वजह से काफी वॉलेटाइल होती है। नाउ इस वजह से मोर ऑफन ऑन डिमांड इंड्यूस बट सप्लाई इंड्यूस। नाउ शॉर्ट रन मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स आर मेंट टू काउंटरैक्ट प्राइस प्रेशर अराइजिंग आउट ऑफ एक्सेस एग्रीगेट डिमांड ग्रोथ। Now, however, the RBI under the governor Shaktikant Das had fought back, saying that food prices could not be ignored by the monetary authority. लेकिन at the same time ये कहा कि फूड को बाहर निकाल के ऐसा होगा कि हम फिर फूड को शायद फोकस ना करें, जो कि गलत है, जो कि उस टाइम अभी हमारे जो है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बात को बोला। नाउ इसको लेके जो है फिर अभी और डिस्कशन चल रही है कि क्या जो है इसको कंटिन्यू किया जाए। नाउ थर्सडे आरबीआई पॉइंटेड आउट दैट ऑलमोस्ट ऑल इन्फ्लेशन टारगेटिंग कंट्रीज हैव चोजन हेडलाइन CPI inflation as a target irrespective of their inflation target level stage of development, while with only Uganda targeting core inflation। मैक्सिमम कंट्रीज आपके हेडलाइन ही लेते हैं, कोर इन्फ्लेशन नहीं लेते, दैट मींस कि वो फूड को कंसीडर करते हैं। Now food inflation if persistent can spill over to core inflation, पर फूड इन्फ्लेशन अगर आपकी बहुत ज्यादा हो जाए तो ऑब्वियसली कोर इन्फ्लेशन के ऊपर पहुंचती है थ्रू हायर वेजेस कॉस्ट, क्योंकि चीजें आपकी वेजेस आपकी जो है उनकी कीमत भी बढ़ जाएगी, हायर रेंट हो जाएंगे, हायर मार्कअप हो जाएंगे, क्योंकि चीजें बहुत महंगी होंगी ओवरऑल। Imperial exercises in the Indian context suggest that non-core prices coverage to core prices in the long run. So there are also spillover from non-core inflation to core inflation। अगर non-core बढ़ रही है आपकी, ठीक है, तो उससे core inflation पे impact जो है वो आता ही आता है।
सो इसी वजह से इंप्लाइंग दैट मॉनेटरी पॉलिसी कैन नॉट इग्नोर सेकंड राउंड इफेक्ट, सो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। नाउ हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन एज मेजर्ड बाय सीपीआई स्लम टू एन 8-year लो, हमारी हेडलाइन जो है 1.5% जुलाई में हुई, इन सेकंड लोएस्ट प्रिंट एवर अंडर द करंट इन्फ्लेशन व्हिच इज सेट टू बी अपडेटेड 2026 के अंदर। अब आगे जाके इसको देखेंगे। मीनवाइल सीपीआई इन्फ्लेशन एक्सक्लूडिंग फूड एंड फ्यूल, ये आपका नया डाटा है। सीपीआई इन्फ्लेशन जिसमें कि हम फूड और फ्यूल को अगर निकालें तो हमारी एट प्रेजेंट कितनी चल रही है, 4.1% चल रही है। हेडलाइन इन्फ्लेशन हैज मूव्ड इन अ ब्रॉड रेंज, 1.5 से 8.6 रेंज बहुत ज्यादा है आपकी हेडलाइन की, अगर हम जो है इसमें फूड और जो है फ्यूल दोनों को मिला देते हैं तो। सो ड्रिवन बाय सीपीआई फूड इन्फ्लेशन which has ranged from 2.7% to 14.2%. Even food inflation में भी काफी ज्यादा आपकी रेंज है। So the conduct of the monetary policy framework needs both policy certainty and credibility. This has become particularly important during current environment of heightened uncertainty. पूरे वर्ल्ड में हो ही रहा है। It is therefore important that basic tenets of framework that have been tested and judged to favorable are continued. इस वजह से आपको जो है अब तक कैसे चल रहा है तो कंटिन्यू करना चाहिए, बिकॉज ये हमारी काफी फेवरेबल पोजीशन जो है वो दिखा रही है। अब इसके अंदर आपको ये जो आपका ये डाटा है काफी काम आ सकता है, राइट। तो ट्रेंड्स इन फूड एंड कोर इन्फ्लेशन, इसमें अगर हम देखें तो अप्रैल 2012 से लेके, ठीक है, ये आपका फेब 2025 तक का आपका डाटा आपको यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो इस चार्ट के अंदर आप देखो फूड, पहले फूड इन्फ्लेशन देखते हैं तो फूड इन्फ्लेशन हमारी काफी नीचे गई 2019 तक आते आते, राइट। उसके बाद फिर ये बढ़ना शुरू हुआ और 2025 में आपकी जो है फूड इन्फ्लेशन अब डेफिनेटली मिड अराउंड जो है इसका लेवल देखें तो 6 से नीचे 4 और 6 के बीच में है कहीं पे आपकी। और इसके साथ ही अगर आप फोकस करोगे तो आपकी कोर इन्फ्लेशन जो है फूड इन्फ्लेशन से नीचे थी, लेकिन 2019-20 में कोर इन्फ्लेशन आपकी बढ़ती चली गई। ऑब्वियसली आपका जो है वो कोविड का टाइम पीरियड था, उसके बाद ये आपकी अभी भी नीचे ही है। फूड इन्फ्लेशन जो है वो हमारी कोर इन्फ्लेशन से ज्यादा है। तो ये चार्ट जो है वो आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो, मेंस में लिख भी सकते हो और प्री में भी आपको इसके बेस पे क्वेश्चन जो है वो बना ही सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज है दिस इज रिगार्डिंग योर फॉरेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरेस्ट की डेफिनेशन को लेके, राइट। नाउ हरियाणा गवर्नमेंट ऑन मंडे ऑफिशियली डिफाइंड व्हाट द वर्ड फॉरेस्ट मीन्स। Official says that the state's definition is aligned with judicial expectations, but environmentalists have criticized it for being too narrow and leaving the ecological sensitive Aravalli Ridge vulnerable to illegal mining. तो illegal mining बढ़ाने के लिए उन्होंने फॉरेस्ट की डेफिनेशन ही चेंज करने की कोशिश की है। तो ये क्या आपकी डेफिनेशन जो है उन्होंने दी है, देखते हैं। In its notification, Haryana Environment, Forest and Wildlife Department ने कहा a patch of land shall be deemed to be forest as per dictionary, meaning it if it fulfills following condition. Number 1, it has a minimum area of 5 acre. If it is in isolation, minimum area of 2 acre. If it is in contingency, within government notified forest. तो अगर मिनिमम 5 हेक्टेयर होना चाहिए आपका, ठीक है, जिसके ऊपर की आपको प्लांट्स मिले, और अगर ये आइसोलेशन में है 2 हेक्टेयर। नाउ इट हैज अ कैनोपी डेंसिटी, कैनोपी जो है जो आपका पेड़ है ऑब्वियसली जो उसका ऊपर वाला रीजन है उसका एक पूरा कैनोपी क्रिएट करता है, राइट। तो वो सिर्फ 0.4 दैट इज 40% और मोर भी हो तो भी चलेगा, राइट। मतलब डेंसिटी को ज्यादा फोकस नहीं किया गया यहाँ पे। नोटिफिकेशन फर्दर स्पेसिफाइज दैट ऑल लीनियर कंपैक्ट एग्रो फॉरेस्ट्री प्लांटेशन, किसी भी तरह की प्लांटेशन फॉरेस्ट्री के अंदर डाल रहे हैं, right, and orchards situated outside the government notified forest shall not be treated as forest under the available definition. लेकिन अगर गवर्नमेंट के नोटिफाइड एरियाज के बाहर अगर कोई ऐसी चीजें हैं तो फिर उसको फॉरेस्ट काउंट नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट रिसेंट डायरेक्टिव्स क्या है? On March 4, Supreme Court had directed all states and union territories to define what constitute forest. So Supreme Court ने बोला कि आप बताओ एक्चुअली फॉरेस्ट क्या होना चाहिए। तो कोर्ट said that state and UT must constitute export community और वहां से आइडेंटिफाई करे फॉरेस्ट लाइक एरियाज, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट लैंड एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट लैंड। तो बेसिकली ये आपका 1 महीने के अंदर अंदर उनको बोला कि आप 3 तरह के फॉरेस्ट एरियाज को डिफाइन करो एंड दीज कमेटी मस्ट कंप्लीट देयर मैपिंग ऑफ फॉरेस्ट लैंड एंड सबमिट देयर रिपोर्ट विद इन 6 months. The court further said that the process must strictly follow GIS based decision support database होना चाहिए that include district wise plot that may qualify as forest under Forest Conservation Act of 1980. और इसके साथ ही जो है आपकी कोर बफर एंड इकोसिस्टम जोन्स और प्रोटेक्टेड एरिया, इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ माइग्रेटरी कॉरिडोर्स, लैंड डिवर्टेड फॉर फॉरेस्ट, हर चीज आप उसको प्रॉपर मैप करके बताओ।
Now, Chief Secretary of State and Administration (UT) who fail to comply with it personally, they are accountable. तो इसको लेके फिर Godawari and FCA क्या है, कोर्ट issued these directives while hearing. तो आपका ये केस कौन सा चल रहा है, ध्यान रखो इसको. Now, challenging 2023 amendment of FCA, ये केस था अशोक शर्मा IFS थे एंड जो है यूनियन ऑफ इंडिया. एट द हार्ट ऑफ बोथ द अमेंडमेंट्स एंड द चैलेंज इज द क्वेश्चन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट फॉरेस्ट. तो ये इस केसेस के बेसिस पे एक्चुअली ये कंट्रोवर्सी इमर्ज हुई. द FCA रिस्ट्रिक्टेड द de-reservation of forest or use of forest land for non-forest purpose. So the act barred the diversion of forest land for non-forest purpose. तो इसमें से स्पेसिफिकली कहा गया है कि जो फॉरेस्ट लैंड है उसको किसी नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए आप यूज नहीं कर सकते. इसी वजह से अब कोशिश की जा रही है कि फॉरेस्ट की डेफिनेशन को चेंज किया जाए. In 1996, a Supreme Court bench of Justice J.S. Verma and Justice B.N. Kripali in T.N. Godawari and Trimpalpur and Union of India ruled that the word forest must be understood according to its dictionary meaning. वो क्या कहता है? Which covers basically all statutorily recognized forests, whether designated as reserved, protected or otherwise. चाहे वो रिजर्व है, बोला गया है या नहीं, लेकिन जो भी एक बात जिस कवर को ये फॉरेस्ट बोल रहे हैं तो ओवरऑल उसको हम क्लासिफिकेशन के बेसिस पे अलग करके नहीं निकाल सकते. Now this was landmark order. Effectively any parcel of forested land regardless of size, साइज की कोई टेंशन नहीं है, ऑफिशियल स्टेटस की टेंशन नहीं है, ओनरशिप की कोई टेंशन नहीं है, वो फॉरेस्ट ही है. And this widening of the applicability of FCA according to statement of object and reason of the 23 amendment was restraining the authority. अब इसी वजह से authorities ये अपना नई definition नहीं दे पा रही हैं from undertaking any change in the land use. So today this comes in the way of building even toilets, schools and even tribal girls. तो ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रही है ये डेफिनेशन, जहां पे कि और ये लोग बोल रहे हैं कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर देना है लाइक फॉर स्कूल्स एंड ऑल. सो इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने बोला यहाँ पे, सो इन 2023 अमेंडमेंट मेड बाय FCA एप्लीकेबल ओनली टू नोटिफाइड फॉरेस्ट. इस वजह से उन्होंने कहा कि जो नोटिफाइड फॉरेस्ट है वहां पे ये अप्लाई होगा, मींस उसको आप नहीं किसी और काम के लिए यूज कर सकते. एंड लैंड्स दैट वर आइडेंटिफाइड एज फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड. नाउ अ ग्रुप ऑफ रिटायर्ड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स एंड NGO चैलेंज द अमेंडमेंट. तो उन्होंने कहा कि ये गलत किया जा रहा है क्योंकि इसका मिसयूज हो सकता है, तो इसको चैलेंज किया गया है अभी. दैट इज सस्टेनेबिलिटी डायल्यूटेड है. सो इन February 2024 में एपेक्स कोर्ट डायरेक्टेड ऑल UTs एंड स्टेट गवर्नमेंट टू फॉलो गवर्नेंस डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट व्हाइल इट वाज हियरिंग अशोक कुमार शर्मा. नाउ द नेक्स्ट हियरिंग अभी जो है वैसे इनकी ड्यू है. Now reactions of Haryana move क्या है? Although Haryana constituted state and district level committee in April, survey was stalled until a formal definition of forest is finalized. So officials say that with official notification these committees can finally proceed. तो अभी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ये इशू क्या चल रहा है फॉरेस्ट को लेके आपको पता होना चाहिए, और फॉरेस्ट की डेफिनेशन में क्या क्या चेंजेस हरियाणा गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रही थी और ये केसेस कौन से हैं आपने याद रखना है. ये सारा इशू चल ही क्यों रहा है? अरावली की वजह से. The Aravali in the south and west of Haryana gets only 300 to 600 mm rainfall annually. This low rainfall and rocky terrain creates tough conditions for the growth of forest in Aravali. Vegetation here has adapted over millions of years into stunted growth and thorny and dry deciduous forest. तो इस वजह से इस रीजन को ये बोल के कि बिल्कुल भी फॉरेस्टेड एरिया नहीं है, गवर्नमेंट्स जो है इसका मिसयूज करवा सकती हैं. इसी वजह से इन्वायरमेंटलिस्ट जो है इसको लेके क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं. The decision to keep such a high threshold will exclude much of the Aravali from the protected embers of FCA. क्योंकि अगर हम हरियाणा गवर्नमेंट के हिसाब से चलने लग गए तो फिर बहुत सारा एरिया जो प्रोटेक्शन में अभी है वो बाहर चला जाएगा और वो कुछ भी कर पाएंगे. सो इसी वजह से ये जो है यहाँ पे अग्रवाल सेड एडिंग दिस डेफिनेशन वाज प्राइमा फेसी वायलेटिव ऑफ 1996 जो है आपका गवर्नमेंट जजमेंट है. एंड द मिनिमम एरिया थ्रेशोल्ड ऑफ 2 to 5 हेक्टेयर इज ऑल्सो अनरीजनेबल हाई फॉर सच अ ड्राई स्टेट. क्योंकि आप कैसे कह सकते हैं कि 2 से 5 हेक्टेयर तक होना ही चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी ये बहुत ड्राई स्टेट है एंड शुड हैव बीन केप्ट टू 1 to 2 हेक्टेयर रिस्पेक्टिवली. तो ये आपका इशू जो है वो अभी चल रहा है, इसको आप ध्यान से ध्यान के रखो. नेक्स्ट आपको पता है कि PCS प्रीलिम्स के अंदर भी आपको पर्सनैलिटीज पे क्वेश्चन पूछा जाता है. तो ऑब्वियसली अभी एक बहुत ही हमारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो कि पंजाबी हमारे कॉमेडियन है जसविंदर सिंह भल्ला, उनकी डेथ हुई है. तो इस वजह से आपको इसके बारे में भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. 1960 से 2025 तक उनका टाइम पीरियड है नाउ. सो रिनाउंड एक्टर जसविंदर सिंह भल्ला वो कैप्टिवेटेड पंजाबी ऑडियंस विद स्टार एंड ऑल, ठीक है, इन अर्बन एज वेल रूरल एरियाज, सब में वो पॉपुलर थे. ही डाइड.
नाउ बल्ला वाज एडमिटेड टू हॉस्पिटल 2 days बिफोर, और वो लेजेंडरी कॉमेडियन है, कैरेक्टर एक्टर भी रहे हैं, और उनकी फेम जो है बेसिकली कहाँ से स्टार्ट हुई, दैट इज फ्रॉम छनकाटा ऑडियो हिस्टोरिकल सीरीज थी इन 1988, एंड सीरीज ही प्लेड द कैरेक्टर ऑफ चाचा चतर सिंह। तो इस जो है कैरेक्टर को उन्होंने बहुत अच्छे से प्ले किया, और इनकी पॉपुलैरिटी जो है वहां से ही शुरू हुई, और उसके बाद फिर जो है ये इनका हुवर एट द टाइम ऑफ इवन बैटलिंग ए मिलिटेंसी, उस टाइम पीरियड पे भी इन्होंने अपना काम जारी रखा, राइट। एंड शर्मा जो है इनके जो फ्रेंड है एसेड द रोल ऑफ हिज भाटिया जी इन द सीरीज, उसी में उन्होंने जो है वो रोल प्ले किया था। और इसके अलावा इनके थोड़े से और काम है वो आप ध्यान रखो। नाउ बॉर्न इन 1960, कहाँ पे, इन दोराहा विलेज लुधियाना, याद रखना आपने। एंड बीएससी की इन्होंने, एमएससी फ्रॉम पीएयू, और अर्निंग बिफोर अर्निंग अ पीएचडी इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन फ्रॉम चौधरी चरण सिंह पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मेरठ से, और उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया पीएयू 1989 एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड वेंट टू बिकम प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। एंड उसके बाद एट पीएयू ही प्रोड्यूस्ड सेवरल इवन ऑडियो कैसेट्स एंड वाज पार्ट ऑफ सेवरल विजुअल कैंपेन्स। So while teaching was his profession, comedy remained his first love. So he made debut and came in 1975 All India Radio पे आए, and but fame arrived in 1988, और उसके बाद फिर जो है फर्दर इनका दुल्ला भट्टी 1998 में फिल्म में डेब्यू किया इन्होंने, और वहां से जो है इन्होंने फिर उनकी इंपॉर्टेंट प्लेस थी दैट इज माहौल ठीक है, इसमें अस्टायर और पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट, वहां पे इन्होंने बहुत सारा जो है वो ऑब्वियसली स्टायर करा। एंड उसके बाद बहुत सारी इनकी मूवीज हैं, कैरी ऑन जट्टा, डैडी कूल, मुंडा फूल, मिस्टर एंड मिसेस 420, जट एंड जूलियट, सरदार जी। तो इस तरह की जो भी इनकी मूवीज के अंदर इनका इंपॉर्टेंट योगदान है उसको भी आप एक बार लर्न कर लो, राइट, क्योंकि किसी भी आपको स्टेटमेंट में कुछ भी पूछा जा सकता है। और इसके बाद humor shaped Punjabi pop culture also, but his sharp style also triggered backlash. In 2003, Chankata album angered religious group. 2009, then Meethe Poche drew protest from even सरपंचेस and all. और इनके काम में सिर्फ आपने ध्यान देना है कि कौन कौन सी मूवीज जो है उनके साथ इन्होंने काम किया, राइट, और दैट इज इट। बस इतना सा आप फोकस में रखना रिगार्डिंग दिस पर्सनैलिटी, राइट। नेक्स्ट बेटा हमारी एक स्कीम है जो न्यूज में है, दैट इज पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम। कोई भी स्कीम न्यूज में है उसका मतलब क्या होता है कि आपकी कवरेज उसके बारे में बहुत अच्छी होनी चाहिए। नाउ पंजाब ट्राइज विद द सेंटर्स फ्लैगशिप, सेंटर की स्कीम है पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम हैज बीन अ स्टोरी ऑफ राइज एंड फॉल। क्यों? From just over 11 lakh beneficiaries when the scheme was launched in 18-19, ये याद रखो 18-19 के अंदर लॉन्च हुई है, enrollment went up to the overwhelming 23 lakh farmers हुए, only to come down to around up 2 lakh in the subsequent years। तो ये बहुत बड़ा जो है वो अप डाउन यहाँ पे दिखने में आया है। So in the last quarters of installment payment, number of farmers registered with the central scheme settled down to what is it had started with 11 lakh and a quarter। तो इस वजह से ये स्कीम आपकी न्यूज में है, किस तरह से इसमें इतना जो है वो आपको zigzag मिल रहा है। सो एज पर पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द स्टेट हाउवर हैड अराउंड 19 लाख फार्मर्स एट प्रेजेंट, जबकि 19 लाख फार्मर पंजाब में है। सो पीएम किसान स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2019 and to supplement the financial need of land holding farmers under the scheme, सारी आपको फीचर्स यहीं पे नजर आ रहे हैं। Your 6,000 per year is transferred in 3 installments into Aadhaar seeded bank account of farmers under DBT. Now data shows that the initial year of the scheme, Punjab witnessed an overwhelming response. Initially तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो पंजाब में आया। फॉर इंस्टेंस इन थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है 22.21 lakh farmers had received 2,000 each with amount of 483 around crore being released. So the number rose to 23 lakh farmers in fourth installment. However, the number began to fall steadily and by the fifth installment जो कि 2020 में हुआ, it was 19.01 lakh beneficiaries and 17% dip आया। eighth installment के अंदर जो है 2021 में and the number of beneficiaries declined to 17.60 lakh before reaching 17.13 आते आते आपकी 10th इंस्टॉलमेंट में 2021 और मार्च 2022 में। सो द स्टीपेस्ट डिक्लाइन वाज सीन इन 12th इंस्टॉलमेंट 2022 में, अगस्त और नवंबर में, व्हेन द नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज वर जस्ट 2.07 लाख, इट इज 91% ड्रॉप हो गया। ये ऑफिशियल एट्रीब्यूटेड द डिप टू कॉम्प्रिहेंसिव चेक्स एंड बैलेंसेस ड्राइव
which struck off duplicate ineligible beneficiaries को निकाला गया, वो कहते हैं इस वजह से हुआ. And lakhs of farmers also failed to register. बहुत सारे farmers ने अपने को register नहीं कराया during the particular period of the installment, and some also didn't have their, in fact, मैंडेटरी KYC, और बहुत सारे अपना KYC नहीं कर पाए. और पोस्ट 2022 नंबर बिगेन रिकवरिंग, 2022 में फिर से जो है ये नंबर रिकवर होने लग गया, बट इट इज येट टू रीच द टोटल नंबर ऑफ फार्मर्स इन द स्टेट. लेकिन अभी भी पूरे फार्मर्स कवर नहीं हो रहे हैं. In the 13th installment, 8.61 lakh farmers got the benefit of the scheme. By 19th installment, number of beneficiaries 10.58 हुए, and then 11.35. So as per Punjab government's own survey conducted during कांग्रेस regime 2017 से 22 में there are around 19 lakh farmers. तो हमारा सर्वे 19 लाख फार्मर की बात करता है, and the scheme has for reached 11.34 beneficiaries right now. और official said that many farmers are still not registered on the portal, अभी रजिस्टर भी नहीं हुए हैं. तो इस वजह से आपका एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट टू प्रोवाइडिंग डोर स्टेप बायोमेट्रिक फैसिलिटी ये अब जो है ये कर रही है. Why did beneficiaries shrink? तो क्यों shrink हुए होंगे? Officials said that the earliest stage of scheme all filters were not properly in place. इस वजह से आपके जो झूठे claimant हैं वो हो सकते हैं, which allowed more than one member or the same family to get registered. So over time, however, several checks are introduced and the number came down. Added that around 7 to 8 lakh more farmers in Punjab could still be eligible under this scheme. And the left out farmers have not fulfilled conditions, क्योंकि मैंडेटरी है, आधार लिंक बैंक अकाउंट है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ द लैंड है, KYC वगैरह नहीं कर पाए हैं, ये रीजन हो सकता है. He added that farmers should come forward and provide detail of their agricultural land, which could be half an acre or even 100 acre. तो ये फार्मर जो है बाहर निकल के आए और अपनी जो है वो सारी KYC फिल करें. So this is the reason why this scheme is in news. but जरूरी नहीं कि ये न्यूज है उसके अलावा आपको पूछा नहीं जा सकता. In fact, sometimes कोई न्यूज है वो नहीं पूछते, लेकिन कंप्लीट बैकग्राउंड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कीम वो आपसे पूछ सकते हैं. इसके अलावा PCS मेंस में आपको ये स्टेट एज इट इज ही क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो इसको आप अच्छे से कवर करो. न्यूज डिफेंस, और डिफेंस सेक्टर हमेशा से ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इसके अंदर नया जो है वो टेस्ट हुआ हो. सो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली कंडक्टेड मेडल फ्लाइट टेस्ट ऑफ Integrated Air Defense Weapon System IADWS Odisha coast से. This marks another step towards developing a homegrown nationwide security shield from multi-domain enemy attack under Mission Sudarshan Chakra by 2035. मिशन सुदर्शन चक्र भी आपको पता होना चाहिए. 2035 तक जो है हमने अपने आप को पूरा मल्टी डोमेन एनिमीज अटैक से बचाने के लिए सिस्टम बना लेना है. In a statement, the Ministry of Defence said that this is a multi-layered air defense system comprising all indigenous quick reaction surface-to-air missiles हैं, advanced very short-range air defense system है, and missiles हैं, and high-powered laser-based direct energy weapons हैं. Development comes days after Prime Minister's addressing the nation on Independence Day. So Mission Sudarshan Chakra, a comprehensive multi-layer network system aimed to protect India and its vital installation from range of enemy. This is very very important for PCS prelims. That is your Mission Sudarshan Chakra. इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान में रख के जाओ. And इसके साथ ही फिर डेवलपमेंट कम्स आफ्टर प्राइम मिनिस्टर एड्रेसिंग नेशन ऑन द इंडिपेंडेंस डे ऑन दिस लॉन्च. और इसके बाद जो है ये अभी आपका टेस्ट हुआ है मल्टी लेयर प्रोटेक्शन बाय कंबाइनिंग सर्वेलेंस, साइबर सिक्योरिटी, एयर डिफेंस सिस्टम टू डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय थ्रेट्स इंक्लूडिंग लॉन्ग रेंज मिसाइल ऑल्सो, एयरक्राफ्ट से भी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल से भी अलोंग द बॉर्डर्स. डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्राइवेट सेक्टर आर एक्सपेक्टेड टू कोलैबोरेट इन इट, एंड इट इज टू बी लाइक आपका ये इंटेग्रेटेड जो है इंटेग्रेट हम इसके साथ कर पाएंगे विद अवर इंडियन एयरफोर्स इंटीग्रेशन एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम, और उसके साथ साथ ही आर्मी का भी. नाउ इंडियन एयर डिफेंस हैड सक्सेसफुली इंटरसेप्टेड पाकिस्तानी मिसाइल्स एंड ड्रोन्स. इसी वजह से ऑपरेशन सिंदूर भी हमारा बहुत अच्छे से हो पाया. एंड इंडिया फ्लैगशिप सरफेस टू एयर सिस्टम जो है इसके अलावा हमारा दैट इज S-400 त्रिमुख Barak 8 MR SAM, that is medium range surface to air missile, and indigenous Akash played key roles as the armed forces जो है activated there, integrated जो है यहाँ पे counter UAS unmanned aerial vehicle system grid among other air defense system. तो कौन कौन सी चीजों का नाम यहाँ पे आ रहा है, इस सबको आपने ध्यान में देना है, बिकॉज सिंदूर ऑपरेशन जो है वहां पे भी इन्होंने काम किया. एंड ऑन द फ्लाइट टेस्ट ऑफ योर IADWS
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है सेड दैट इंटीग्रेटेड ऑपरेशन ऑफ ऑल द वेपन सिस्टम कंपोनेंट इज कंट्रोल्ड बाय, इन सबको कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर डेवलप्ड बाय DRDO. Now Vashurad and DEW are your developed by same research center, Emirates and Center for High Energy Systems and Science respectively. Now according to government, during the flight test, 3 different targets including 2 high-speed fixed wing unmanned aerial vehicle target और multi-copter drone were simultaneously engaged and destroyed completely. ये टेस्ट करके हमने देखा बाय कोएर्सन और ये आपका वर्शुरल्स एंड हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम एट डिफरेंट रेंजेस एंड ऑल्टीट्यूड्स, राइट। तो ये बहुत अच्छे से जो है इसने परफॉर्म करा अपने टेस्ट के अंदर एंड इट इज सेड दैट वेपन सिस्टम कंपोनेंट इंक्लूडिंग मिसाइल सिस्टम, ड्रोन डिटेक्शन, डिस्ट्रक्शन सिस्टम, वेपन सिस्टम, कमांड कंट्रोल अलॉन्ग विद कम्युनिकेशन, रडार, ये सब कुछ बहुत अच्छे से काम किया एंड दिस वाज कंफर्म्ड बाय रेंज इंस्ट्रूमेंट डिप्लॉयड बाय द इंटीग्रेटेड test range that is at Chandipur. ध्यान रखना, to capture the flight data and the test was witnessed by senior scientists also, right? So ये आपकी important news है कि हमने successfully जो है ये काम किया, right? So this is all for today. आज के लिए ही इतना, और आप इसको बहुत अच्छे से कवर करो, लर्न करो चीजों को और लगे रहो, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आपका रिसेंट करंट अफेयर जो मैं आपका मई, जून, जुलाई ऑनवर्ड्स करती आ रही हूँ, इस सारी न्यूज को आप बार बार रिवाइज करो, इनमें से डेफिनेटली यू विल गेट मैक्सिमम क्वेश्चंस, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और प्लीज शेयर करो और अपनी फीडबैक जरूर देते रहो।